A very pleasant evening to everyone. Once again, respected the convener, faculty members, and the audience. My name is Piyush Kumar, and on behalf of the Nature and Environment Society of Zakir Hussain Delhi College, it is my privilege and honor to welcome everyone to the inaugural ceremony for the academic year 2021-22. Before we move on with the happening of the event, I want to share certain instructions with our audience. So, here is our first instruction. During the course of the event, everyone is requested to keep their mics and camera in check to avoid disturbances. Please avoid using the share option and help us in maintaining proper decorum throughout the event. For Q&A session, feel free to write your questions on the official WhatsApp group of inaugural session. Now, I would like to invite Shrey to carry on with further proceedings. Thank you, Piyush, for handing over this to me. As Martin Luther King Jr. has rightly said, and I quote, "For in the true nature of things, if we rightly consider, every green tree is far more glorious than if it were made of gold and silver." A very heartfelt good evening to everyone present here. I cordially welcome you all to this inaugural session of Nature and Environment Society. For the past few years, the entire unit under Dr. Ratnam Kaur Vattal has devised various enterprises with sole objective of preserving our mother nature. Webinars, talks, lectures by many dignitaries and renowned speakers on various concerning and related subjects of the environment has been organized over the years. To grace this occasion, we have with us our two notable speakers, an environmentalist, Mr. Mohit Relan, the founder of Ye Mera Gaon and co-founder of NGO Say Earth, and Mr. Ramveer Tanwar, also known as Pond Man of India, founder of NGO Say Earth. Sir, I acknowledge your presence on behalf of all the members of our society. What an honor to have you both on board. I humbly request everyone to bear with us till the end of the session as we have some exciting news to share with you. Apart from this, results of the poetry competition organized from 15th August to 20th August on the occasion of Azadi Ka Amrut Mahotsav will be declared today. Back to you, Piyush. Thank you, Shrey. Now, I invite everyone to walk down a memory lane with all the events conducted by the Nature and Environment Society in the past year. Hope that everyone enjoyed watching the presentation just as much I did. Now, Nature and Environment Society has carried all the duties and responsibilities with great enthusiasm the past year. But since change is an inevitable truth, on that train of thought, we would like to formally announce the new logo and motto for our society today. We would like to request our convener, Dr. Ratnam Kolvattal ma'am, to share her thoughts briefing about the same. Thank you, Piyush. Good evening, everyone. A very warm welcome to you all
to the inaugural session of Nature and Environment Society for the academic session 2021-22. I'm calling it an inaugural session, but to be truthful, it's in working in continuation. The inaugural is only for the new members who have joined this society recently. I take this opportunity to welcome our esteemed speakers, Mr. Mohit Rahlan and Mr. Ramveer Tanwar, colleagues and dear participants. Our sincere apologies for the inconvenience caused to many of you due to rescheduling of this event, but due to certain extremely sad, unforeseen circumstances, this was just unavoidable. I'm sure you'll appreciate that. At the onset, I would like to thank Mr. Mohit Rahlan for sparing his valuable time to talk to our students. We are associated with him for the last 3 to 4 years, and our students have worked very closely with him in his various environmental protection endeavors. I'm also grateful to Mr. Ramveer Tanwar for addressing our new batch of students. Mr. Tanwar is a renowned environmentalist, and he has given a lecture earlier also, which was greatly enjoyed and appreciated. On behalf of the Nature and Environment Society, I welcome you once again. It gives me great pleasure to take this opportunity to welcome the new members of the society. I'm sure you would love to spend time in the society and will have lots to contribute. Please do take home some lessons of caring and sharing of the Mother Earth. On the 75th anniversary of our independence, let's work towards freedom from pollution and adverse effects of climate change. I would now like to very briefly talk about this very vibrant society called Nature and Environment Society. Any society becomes vibrant by its student members. I'm indeed very lucky to have a group of students year after year who are full of ideas, are totally dedicated to the cause of environmental protection, and are indeed very talented and hardworking. It's a pleasure working with them. The society organizes various events like webinars, workshops, and inter-college events. They also have a Facebook page and are on Instagram as well, and they are very regularly covering all the environmental issues on the Instagram and Facebook. All this is an endeavor towards spreading awareness about what we can do in order to care for our planet Earth. The society also launches an yearly magazine called Srishti, where students contribute articles, poems, sketches, interviews, and travelogues. Srishti has its own logo as well. This year, the members felt they required to name the Nature and Environment Society, which was just Nature and Environment Society, and the magazine was Srishti. And they also wanted to launch a separate logo for the society. So it has been named very beautifully with a deep meaning, which should be very close to your heart. The genesis is from our students only. I must say, I don't have any contribution in it. I would now like to launch the new name and the logo of the society, and I request for the presentation of the same. Thank you. Over to you guys for presentation. With hours of creative thinking, we emerged as Aranya, where we care about nature like she does for us, as is evident from the logo, in which she gazes at us
and those around us gently. We are as aware as the stag which has pranced, and attempt to gracefully glide like the swan over the icy mountain of hurdles. Thus, we nurture this spirit which is imbued by the branches and roots which will eventually grow into an aranya, a forest seeded for future. Hence, we can care, aware, nurture. Thank you, ma'am, for your inspiring word. We would also like to extend our heartfelt thanks to all those members who were actively involved behind this launch. Now, to make our audience acquainted with our respected speakers, I invite Sonal to share the spotlight. Good evening, everyone. Piyush, there is a change due to some weather conditions. Sonal is not able to join us. Uh, Kanishk will be taking over. Yeah, so good evening, everyone. Today I'll be filling in for Sonal, and today we have with us Mr. Mohit Ralan, the founder of Ye Mera Gaon, a social platform for creating eco villages, and co-founder of NGO Say Earth. He is an environmentalist and a senior consultant in planning and strategy. He has been passionate about environment conservation for the past 20 years, and he has been actively working towards multiple environment initiatives, including urban forest plantation and water bodies rejuvenation. His efforts have been acknowledged by multiple government departments, including the Ministry of Jal Shakti. We also have with us Mr. Ramveer Tanwar. He is the founder of NGO Say Earth and an environmentalist, and he's also a TEDx speaker. He has been passionate about water conservation since his student life. During his graduation, Mr. Ramveer started a campaign, Jai Chaupal, in Gautam Budh Nagar district of Uttar Pradesh, urging people to conserve water and to save water sources like ponds and lakes. He has been trained in CPCB, MOEFCC, Government of India. He has also been appointed district coordinator of the Bhujal Sena, an initiative by the government of Uttar Pradesh. He has been a keynote speaker for environmental awareness in different colleges, universities, and corporate entities as well. In the year 2018, Mr. Tanwar with his team started an online campaign on social media called hashtag selfie with pond. The campaign got huge support and connected more than 10,000 people across the globe. Now over to you, Piyush. Now, I would like to invite our speakers to take the stage and enlighten ourselves. So Okay, first of sir, all, I'd presenting, sir. like to I'd like to thank Zakir Hussain College, the entire team of Aranya, for inviting us in the inaugural session. Thanks to Ratnam ma'am for the tremendous support that we have received, and as she has mentioned in past nearly 3.5 years, your volunteers from your college have been participating in a lot of environment initiatives along with us, be it Yamuna cleanup drives, even as we are moving towards pond conservation out in pond conservation as well. So it has been a really great journey, I would say, in past 3 to 4 years. Students have been really enthusiastic. It's not just like coming up and just participating. They have also been keen to understand how it is happening and what are the best ways of implementing some good ideas, irrespective of whether we are doing it at site or not, in their own colleges and in their life. There have been instances wherein like they have reached out to me for, I'll say like, we all know, right? We are creating waste that we have from our household or from colleges, right? We are converting it into gold, and that gold can be in form of anything. You can have bottles that we are throwing out, right? You can collect those for segregation. So there are so many such initiatives which we haven't implemented yet in our volunteering program, but those students were keen to understand how they can implement in the college. So that was the something that really motivated us also, that they are not coming here just to participate but also to contribute and to learn, and also to share certain things which might help us also
thanks Ratnam ma'am and all the volunteers. Like I am sure like most of them have passed out. I think in previous batches, but yes, it has been a great support from your college. Coming back to us, so me and Ramveer both have been working on environment conservation. So primarily, Ramveer, as we all know, right, he is known as Pond Man of India. So he started working on water bodies rejuvenation. So that's what he's primarily focusing on, to revive as many water bodies as we can. Currently, we are focusing on Delhi NCR, but we have also expanded our team and our work beyond Delhi NCR as well. So we have even gone to states of Haryana, to Punjab, right? And we are now also looking forward to work somewhere in Rajasthan as well. So soon, probably like this or next year, we'll be starting something in Rajasthan as well. So this is something that I'll just share learning curve for us. He had a very good expertise and knowledge in, I'll say, the water conservation, and I was mainly focusing on cleanups, awareness on the environment, and also on the plantation and creating urban forests. So we collaborated together and we thought like, let's work collectively and in a holistic manner for all the aspects of environment. So that's how we started, and we created this organization called our NGO, which is a Say Earth. And so far it's been a good learning experience for both of us. I think I'm quite sure we both have learned a lot from each other, and that's what it's like how we founded Say Earth, and now we are receiving a lot of support from volunteers across from universities, corporates, and even the government entities. So that's more about us. So probably like we'll just cover up some of the things that we as an NGO are doing, and then we'll share our own expertise and our own experience as well with you guys. And then I think we can take up your any questions, any queries, or anything that you want to ask. I think it's been like more than 18 months now that we have founded this. However, the environment conservation efforts that we have been working, it's been nearly, I would say, like more than 7 years of effort for us conservation. Our team is currently working on both the water conservation and the other aspects of environment, or water bodies conservation, but also now extensively working towards waste segregation. We are also now working on creating urban forests. So the overall objective that we started this NGO was to maintain the hydrological cycle and to also focus on the environment aspects, because entire ecosystem revolves around water. And currently we all are facing challenges in terms of pollution that we see across, right, in Delhi NCR and in major cities. So that's what our objective was, to conserve hydrological cycle, so that the day zero which we always heard in, right, so that can be addressed, and parallelly we can also address some of the aspects of pollution that we face day to day basis. The vision that we have is to create a better world for the future. Basically it means environment is the whole soul life system, right? It's a support system for humankind to exist. So unless we have better environment for all of us, the humankind will perish. So we have to focus on, and we have to have a larger vision wherein we start working on environment conservation as a whole. The mission that we are currently working on is to impart the knowledge, as we are doing through this session, to impart that knowledge and the experience that we have gained so far and on the sites, along with all the volunteers, all the different NGOs, corporates, and the government entities, so that everybody can work in a holistic manner toward addressing all these global environmental issues that we all are facing, and which we also call as climate change. So there are certain key things that I just want to share. So I would rather have Ramveer to take up through this journey of how this entire process of NGO came up, how we formed Say Earth. हाँ, थैंक यू मोहित। सबसे पहले तो मैं फिर से जाकिर हुसैन कॉलेज का और उनकी पूरी टीम का, अब तो अरण्या हो गई है, हालांकि पहले सृष्टि के साथ हमने इससे पहले भी 1-2 बार जुड़े हैं और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं। और पूरी सृष्टि की जो टीम थी, जैसा मोहित ने बताया कि वो भी हमारे साथ कई बार वॉलंटियर सपोर्ट, और कई बार हमने कई बातें उनसे सीखी हैं। So that is wonderful initiative by the Zakir Hussain College, and thank you Ratnam ma'am for your kind words and beautiful introduction. तो अभी मोहित जी जैसे बता रहे थे कि से अर्थ एनजीओ कहाँ से आई। देखिए, हम एनजीओ वैसे बहुत सारी हैं, लाखों करोड़ों एनजीओ इंडिया में हैं,
लेकिन एनजीओ दो तरह से खुलती हैं कि एक पहले एनजीओ खुलती हैं या एनजीओ का रजिस्ट्रेशन होता है, उसके बाद कुछ काम करते हैं। इसका बिल्कुल उल्टा है। हमें 4, 5, 6, 7 साल जब काम करते हो गए दूसरे एनजीओज के साथ एज ए वॉलंटियर, बिना किसी नाम के, चाहे वो यमुना घाट्स पर हों, चाहे वो पॉन्ड रिवाइव्स पे हों, चाहे जल चौपाल के हों, तब जाके हमें महसूस हुआ कि अब एक ऑर्गेनाइजेशन हमारी भी होनी चाहिए। और तब हमने इस ऑर्गेनाइजेशन को रजिस्टर कराया, दैट इज कॉल्ड से अर्थ। इसका कोई स्पेसिफिक मीनिंग नहीं है, बट ये है कि हमें अच्छा लगता है, हमारी फीलिंग्स इस वर्ड के साथ जुड़ी हुई है, इसलिए। और अगली स्लाइड्स में हो सकता है आपको भी अच्छा लगे कि इसका मीनिंग आप भी ढूंढ पाएं, हम अभी तक ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। मैं अपने बारे में बता दूं, हालांकि पहले से ही सब कुछ स्टूडेंट्स ने इंट्रोडक्शन में कवर कर दिया है। मैं 12th क्लास के बाद से ही अभी भी शायद 12th क्लास के बाद से ही कॉलेज में एंटर हुए हैं। तो मैं जब जिस तरह से आप कॉलेज में एंटर हुए हैं, उसी टाइम से जब मैं कॉलेज में एंटर हुआ था ग्रेजुएशन के लिए, तभी से मैं इस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व था। और लेकिन उस समय पे तालाबों के बारे में बिल्कुल नहीं था ये सिर्फ एक जल चौपाल थी, लाइक कि चलो स्टूडेंट सारे मिलके अपने गांव में, अपने मोहल्ले में लोगों को पानी के बारे में बताते हैं, वाटर कंजर्वेशन के बारे में बताते हैं। तो उसी का नाम धीरे 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 जल चौपाल पड़ गया। और जल चौपाल का जब एडमिनिस्ट्रेशन को, यहाँ के आईएएस ऑफिसर्स को पता चला, तो दे अप्रिशिएटेड आवर इनिशिएटिव, बिकॉज हम स्टूडेंट थे, खुद भी स्टूडेंट थे, लेकिन इस सीरियस टॉपिक पर आपकी तरह, जिस तरह से आप चिंता आज जाहिर कर रहे हैं, तो हम भी इसी तरह से चिंता उस समय पे जाहिर कर रहे थे। और ये मेरे सारे उस तरह के स्टूडेंट थे जो मेरे पास ट्यूशन पढ़ने आते थे, कोई 9th क्लास में था, कोई 10th क्लास में था। तो उस समय पे सब हमें ज्ञान देते थे कि अभी तुम्हारे पढ़ने की उम्र है, इन चक्करों में मत पढ़ो। हाँ, मुझे कम, मेरे स्टूडेंट्स को ज़्यादा देते थे। लेकिन ये है कि हमें धीरे-धीरे हमारा मोटिवेशन बढ़ा। हालाँकि बच्चे तो पास आउट कर गए, लेकिन मैं वहीं पे रह गया। और कॉलेज के साथ-साथ ये चीज़ें चलती रही, कॉलेज के बाद भी चलती रही, जॉब भी जॉइन की, उसके साथ भी चलती रही। तो लेकिन ये अब जल चौपाल से ये पूरा एक बड़ा प्लेटफ़ॉर्म क्रिएट हो गया है, जहाँ हमारे पास ऑल इंडिया से ऑल इंडिया से वॉलंटियर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चाहे वो डायरेक्टली हों या इनडायरेक्टली हो। और हम धीरे-धीरे पूरे भारतवर्ष में अपने कार्य को फैला भी रहे हैं। और अगर हम क्या-क्या करते हैं, अगर उस पे बात करें, तो इसमें आप पढ़ भी सकते हैं। जल चौपाल के अलावा हमारा काम है एफ़ोरेस्टेशन। एफ़ोरेस्टेशन में आजकल एक बढ़िया फ़ॉरेस्ट लगाने की तकनीक है। उसके बारे में वैसे मोहित जी ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएँगे, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ सिर्फ कि मियावाकी फ़ॉरेस्ट है और पॉन्ड्स हम रिजुविनेट करते हैं। अगर आप गाँव से या आपके पेरेंट्स गाँव से तो ज़रूर जुड़े होंगे। अगर आप जुड़े हैं, तो आपके गाँव में ज़रूर 2, 3, 4, 5 ज़रूर ऐसे तालाब रहे होंगे या अभी भी हों। लेकिन हमने देखा है धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जिस गाँव में 3 तालाब थे, अब 1 रह गया और किसी गाँव में 1 भी नहीं रहा। वो गए कहाँ? या तो लोगों ने उस पे एन्क्रोचमेंट करके अपना घर बना लिया, या वो कूड़ा डालते, डालते, डालते डंपिंग यार्ड बन गए और उसके बाद वो खत्म हो गए। जैसे आप अगर दिल्ली में पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपके बराबर में एक शहर है नोएडा। नोएडा में देयर वर 200 वाटर बॉडीज, 200 वाटर बॉडीज थी और वो अच्छी खासी बड़ी वाटर बॉडीज थी। अगर आप गूगल अर्थ से जाके देखेंगे, तो पिछले 20 साल पहले, 15 साल पहले आपको बहुत सारी वाटर बॉडीज दिख जाएँगी। लेकिन 2017-18 में फिर से सबकी जब गिनती की गई, सबको ढूँढा गया, तो वहाँ पे कोई वाटर बॉडी नहीं। और इसका क्या नुकसान है आप जानते हैं? इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है, थोड़ी-सी बारिश आती है और बाढ़ जैसे हालात हो जाते हैं। अगर नोएडा में घरों में पानी घुस जाता है, जहाँ लोगों के सोने की जगह बेड होता है, सोफे होते हैं, वो पानी में तैरने लगते हैं, मात्र थोड़ी-सी बारिश से। तालाबों का यही इम्पोर्टेंस थी कि बारिश के पानी को वो अपने अंदर संजो सकते हैं। और ये तालाब ऐसा नहीं है, अगर आप तालाब क्यों बने थे, कैसे बने थे, किसने बनाए थे, ये कोई आसमान से तो टपके नहीं थे। कैसे बने थे, इसके बारे में एक बहुत अच्छी किताब है और उसको हम कहते हैं आज भी खड़े हैं तालाब। ये आपको हिंदी में, इंग्लिश में, दोनों में मिल सकती है अगर आप गूगल पे देखें। पॉन्ड्स के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है अनुपम मिश्र जी ने।
तो ये तालाब कहाँ पर बनाए गए थे, वो उसका एक बड़ा साइंस था। लेकिन जिन लोगों ने बनाए थे, ना तो वो हमारे आपकी तरह दिल्ली के अच्छे कॉलेज में पढ़ सकते थे, ना उन्होंने हमारी तरह पीएचडी या ग्रेजुएशन किया था। वो गाँव के सीधे-साधे लोग थे, जिनके अंदर इतनी समझ थी कि गाँव में एक तालाब बनाया जाए, जिसमें बारिश का पानी इकट्ठा किया जाए, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज किया जाए। हाँ, उन्होंने कोई इसके बारे में कोई कोर्स नहीं था, लेकिन अब इसके बारे में कोर्स भी है, इसके बारे में हम डिग्री भी हासिल कर सकते हैं, इसके बारे में मंत्रालय भी बने हुए हैं, इसके बारे में स्टेट डिपार्टमेंट्स भी बने हुए हैं, लेकिन फिर भी अब हम तालाबों को खा गए। अगर हम एक उस पे जाएँ, आंकड़े पे जाएँ, तो जब भारत देश आज़ाद हुआ था, ये बहुत डरावना आंकड़ा है। जब भारत देश आज़ाद हुआ था, तो हमारे देश में लगभग 25 लाख हिस्टोरिकल वाटर बॉडीज़ थी, लाइक ऐतिहासिक तालाब जो थे। और फिर से जब 2017 में इनकी काउंटिंग हुई, तो वो 5 लाख रह गए। कितना बड़ा अंतर है, 25 लाख से 5 लाख वाटर बॉडीज़ रह गए। मीन्स हम पानी तो पी गए उनका, पानी के साथ-साथ हम 20 लाख तालाबों को भी पी गए। और उसका रिजल्ट है, आप गुड़गाँव में देखिए, बारिश होती है, पूरे सड़कें पानी तालाब बन जाती हैं। हमारे आजकल अगर आप अखबार डेली पढ़ते हैं, तो अखबारों में मानसून में बहुत एक इस तरह की खबरें बहुत आती हैं। सोसाइटी बन गई तालाब, थोड़ी-सी बारिश से सड़कें बन गई तालाब, नगर निगम हुआ फेल, ये इस तरह की आती है। तो तालाब तो बनेगा ही, इसमें गलत क्या हुआ? तालाब तो बनना ही था, पहले वहाँ तालाब था, फिर सोसाइटी बन गई, अब जैसे तालाबों को मौका मिला, फिर से तालाब बन गया। तालाबों के ऊपर जब हम इस तरह से एनक्रोच कर रहे हैं, और इसमें किसी एक की गलती नहीं है, इसमें हम भी शामिल हैं, इसमें सरकार भी शामिल है, एडमिनिस्ट्रेशन भी शामिल है, बिल्डर्स भी शामिल है, ये सभी लोगों ने हमने मिलके मारे हैं। तो हमारा फिर से उद्देश्य है, श्रेयर्थ का उद्देश्य है, रामवीर का उद्देश्य है, मोहित का उद्देश्य है कि हम जितने से ज़्यादा तालाबों को फिर से रिवाइव कर सकें। ऐसे फिर से रिस्टोर कर सकें, उतनी ज़्यादा से ज़्यादा वाटर बॉडी रिस्टोर की जाएँ और उनको बचाया जाए, ताकि ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज हो, प्लस एक इकोसिस्टम बना रहे। मैं मोहित से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो हमारे नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट है एफॉरेस्टेशन, मियावाकी फॉरेस्ट, उसके बारे में एक्सप्लेन करें प्लीज। थैंक यू रामवीर। सो वी कैन मूव टू नेक्स्ट स्लाइड, तो उसमें हम बाकी की चीज़ें भी कवर करेंगे। तो अलॉन्ग विद, जैसे रामवीर ने बताया तालाब, सो तालाबों के साथ साथ अगर हम बात करें कि जो तालाब हैं उनमें क्या क्या समस्याएं होती हैं, ये सारी चीज़ें मैं चाहूँगा कि रामवीर बाद में कवर करेंगे अभी, कि क्या समस्याएं होती हैं और उनके क्या समाधान हैं। तो ये सारी चीज़ें अभी हम कवर करेंगे। इससे साथ साथ में मे बी वी कैन मूव टू नेक्स्ट 2 मोर स्लाइड्स, जिसमें बाकी की भी हमारी डिटेल्स हैं कि अलॉन्ग विद वाटर बॉडीज। हाँ, इस स्लाइड पे बैक सेम स्लाइड। हाँ, सो अलॉन्ग विद वाटर बॉडीज व्हाट एल्स वी डू। तो जैसे आप ये देख सकते हैं, वी हैव मेंशन क्लीन अप। सो क्लीन अप ड्राइव्स हम ऑर्गेनाइज करते थे, अभी भी करते हैं। क्लीन अप ड्राइव्स में हम क्या करते हैं, इट इज़ मेनली एक अवेयरनेस जो होती है कम्युनिटी की, वो तभी आएगी जब आप, अगर हम कहें कि आप जाके किसी से भी किसी चर्चा करेंगे किसी चीज़ की, तो हमारा जो एक ह्यूमन नेचर है वो हमेशा इस तरह का होता है कि ये कौन आ गया समझाने, ये तो बेवकूफ़ है, ये पागल बना रहे हैं, ऐसा तो होता ही नहीं है, ऐसा कौन कर रहा है। तो आपको हमारे कंट्री के अंदर कुछ भी करना हो, उसको एक एग्जाम्पल सेट करके दिखाना पड़ता है, आपको वो करके दिखाना पड़ता है। आप जब तक उसको करके नहीं दिखाओगे, कोई मानेगा ही नहीं कि वो संभव है या कोई करेगा। या आप कोई भी ऐसी चीज़ करोगे जो एक कहते हैं कि स्टेचर वाली बात आती है, हमारे यहाँ पे ईगो की बहुत बात आती है, सोसाइटी में जो अपने आप एक इमेज है उसकी बहुत बात आती है। अगर कोई अपनी उस इमेज से हट के काम करेगा तो लोग उसको कहते हैं पागल है। तो उसी तरह से अगर आपको एनवायरनमेंट को कंजर्व करना है, तो आप ये मान के चलिए कि आपको उसका आदी बनना पड़ेगा। उसको आपको, जैसे हम कहते हैं ना पानी को तालाब में संजोते हैं, ऐसे ही इन अपशब्दों को आपको अपने अंदर संजोना पड़ेगा, तभी आप एनवायरनमेंट को कंजर्व कर पाएंगे। तो उसी तरह की जो एक सबसे मेजर एक्टिविटी जिसमें आपको इस तरह का सुनने को मिलता है वो है क्लीन अप ड्राइव। हम सब कहते हैं कि सफाई स्वच्छता का जो काम है उसके लिए निगम है, सरकार के और डिपार्टमेंट हैं जो आके करते हैं, पर हमें ये भी पता है ग्राउंड लेवल पे अगर हम जाते हैं तो इस तरह की बहुत सारी जो, अगर हमारी स्टेट्स, सिटीज़ या इवन आज की डेट में जो गांव हैं, उनमें सब जगह पे कूड़ा कचरा साइडों में गिरा हुआ मिलता है।
इतना सारे एडमिनिस्ट्रेशन है, इतनी बड़ी गवर्नमेंट है, वर्कफोर्स है, उसके बाद भी कूड़ा कचरा मिल जाता है। फिर भी ये चीज़ें होती हैं और वो कचरा मिलता है, प्लास्टिक मिलता है एक तरफ, उसको कोई देखने वाला नहीं होता। सरकारों ने प्रावधान बनाए हुए हैं, सुविधा दी हुई है, कचरा घर बनाए हुए हैं, डस्टबिन दिए हुए हैं, इसकी एडवर्टाइजमेंट भी होती है। स्वच्छ भारत मिशन इतना बड़ा चलाया गया, प्रधानमंत्री मोदी ने आके इसको इनिशिएट भी किया, उसके बावजूद भी हम लोग उसको इग्नोर करते हैं और कूड़ा कचरा जहाँ कुछ खाया पिया, गाड़ी में बैठे थे वहीं से फेंक दिया रोड पे। तो ये है अवेयरनेस की कमी, रिस्पॉन्सिबिलिटी की कमी। तो इसको वापस लाना, लोगों को रिस्पॉन्सिबल बनाना, कम्युनिटी को एंगेज करना इज व्हाट वी डू एज पार्ट ऑफ आर क्लीन अप ड्राइव, जिससे कि लोगों को समझ में आए कि जो कूड़ा है वो खाली सरकार की जिम्मेदारी नहीं, वो आपकी भी एक नैतिक जिम्मेदारी है, जिससे आपको कहीं गंद इस तरह से नहीं फैलाना और आपको जो उसके लिए कूड़ादान बनाए गए हैं वहीं पे आप उसका निस्तारण करें। दूसरी चीज़ है, घर पे अगर इस तरह के अगर आपको पता हो तो हम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक वेस्ट जो है उसको सेग्रीगेट कर सकते हैं। हम सब लोग घर के अंदर चिप्स लाते हैं, बिस्किट लाते हैं, उसका प्लास्टिक है वो अलग रखिए, जो बायोडिग्रेडेबल है उसको आप प्रोसेस कर सकते हैं। पर जो आपके फल सब्जियां या जो खाना कुछ बच जाता है, उसके जो छिलके बच जाते हैं, अगर आप उनको अलग से रखेंगे तो उससे आप कंपोस्ट बना सकते हैं। उसी कंपोस्ट से जो आप घर पे पौधे लगाते हैं, आप उन पौधों के अंदर वो एक बहुत अच्छी ऑर्गेनिक खाद बनती है, तो आपको बाहर से खाद लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खरीदने की नहीं जरूरत पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, अगर आप एक अच्छा वेस्ट मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो आप अपने लेवल पे कर सकते हैं। दीज आर द थिंग्स जो मैं बता रहा हूँ, जो हम यूजुअली अपने क्लीन अप और अवेयरनेस ड्राइव में करते हैं। रेजुविनेशन की जैसे है, अभी रामवीर बात करेंगे। एफॉरेस्टेशन पे मैं आता हूँ। एफॉरेस्टेशन में हम सब लोग जानते हैं कि आजकल पिछले कुछ सालों में हमने देखा है बहुत सारे हमारे फॉरेस्ट रिजर्व जो हैं, या जो छोटे छोटे हमारे फॉरेस्ट लैंड थे या पैचेस थे फॉरेस्ट के, उनको गवर्नमेंट काट रही है, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज को दिया जा रहा है ऑन इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है, बट क्या डेवलपमेंट एनवायरनमेंट की कॉस्ट पे ही होगा या उसको सस्टेनेबल भी बनाया जा सकता है? दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। उसी के लिए वी ऑल हैव टू वर्क टुगेदर, वी हैव टू रेज आवर कंसर्न्स, वी हैव टू रेज इट टू द गवर्नमेंट, वी ऑल्सो हैव टू पार्टिसिपेट in those all initiatives, whether it is filing a petition, whether it is filing any online campaign, या खुद फिजिकली वहां जाकर मंत्रालय में जाकर एक अपना लेटर रिक्वेस्ट देना। देयर इज नो नीड कि वहां पे आप जाएं, किसी रैली में हिस्सा लें, क्योंकि रैलीज ऐसी होती हैं, कुछ उनका अलग मोटिव भी होता है, कई बार उसके रिपरकशंस भी वायलेंट हो जाते हैं। तो रैलीज के बजाय बहुत सारे और भी तरीके हैं जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं और जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है उसको रोक सकते हैं। आप आरटीआई के थ्रू ये जान सकते हैं कि एक्चुअली में वहाँ पे कितने पेड़ कटने हैं, उनको कैसे रोका जा सकता है, आप उसका सोल्यूशन दे सकते हैं। तो एफॉरेस्टेशन का मतलब खाली यही नहीं कि गए और पौधे लगाए, पर उससे ज़रूरी है कि जो एग्जिस्टिंग जो हमारा फॉरेस्ट रिजर्व है, जो एग्जिस्टिंग प्लांट्स हैं, उनको कैसे बचाएं। तो ये बहुत ज़रूरी है हम सबको समझने के लिए। बात करते हैं प्लांटेशन की। तो प्लांटेशन जो हम करते हैं, प्लांट्स को हम बहुत सारे लोग देखते हैं, खास करके आज के ज़माने में लोग जाते हैं प्लांटेशन करते हैं और सेल्फी लेते हैं। वो सिर्फ प्लांटेशन करी इसलिए जाती है कि मुझे अपनी सेल्फी लेनी है और सोशल मीडिया पे डालनी है। तो अगर हम इसी मोटिव से चलते रहेंगे तो वो प्लांट्स जो आपने लगाए उनको आप कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर आपने उनको मेंटेन नहीं किया, पानी नहीं दिया, रख रखाव नहीं किया, या उनको जानवरों से या दूसरे जो लोग हैं जो उनको तोड़ना चाह रहे हैं उनसे नहीं बचाया, तो वो कभी ग्रो नहीं करेंगे और धीरे धीरे करके सारे पेड़ पौधे हमारे गायब हो जाएंगे। तो इसलिए प्लांट्स लगाना जितना ज़रूरी है, उससे कहीं गुना ज़्यादा ज़रूरी है उनको बचाना, उनको बड़ा करना। तो प्लांटेशन में जो कहते हैं, प्लांटेशन एक्टिविटी इज जस्ट 5% ऑफ द एफर्ट, 95% एफर्ट लगता है प्लांट्स को बड़ा करने में। बहुत सारे तरीके हैं प्लांटेशन के लिए। आप सीड बॉल्स बना सकते हैं, आपको पता होगा छोटे छोटे गोले बनाए जाते हैं जिसमें बीज रखे जाते हैं, खाद के, गोबर के, उसके अंदर हम बीजों को रखते हैं और उनको बारिश के मौसम में, मानसून में कहीं पे भी रखो, उसमें से छोटे छोटे करके धीरे धीरे पौध निकलाती है। अब छोटी छोटी आपके स्कूल्स में, कॉलेजेस में, आप अपने कंपनीज में जहाँ जाते हैं, अपने घर के पास अगर आपके पास जगह हो तो छोटी छोटी नर्सरीज बना सकते हैं। वहाँ पे छोटे छोटे पौधे लगाइए और जब मानसून का सीजन आए आप जाके उन पौधों को बाहर बड़े एरिया में लगाइए। जब वो पौधे 3 फीट 4 फुट के हो जाएं तो उन्हें जाके बाहर ग्राउंड में लगाइए। तो इस तरह से आप छोटी छोटी नर्सरीज बना सकते हैं। नेक्स्ट आप कर सकते हैं जो एक्चुअल में जो हम नॉर्मली करते हैं, प्लांटेशन ड्राइव। बाहर गए और प्लांट्स लगाए, प्लांट्स लगाइए, लोगों को जागरूक कीजिए। आप हर जगह जाके प्लांट्स लगा सकते हैं, लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं, पर आप देख रेख हर जगह नहीं कर सकते। इसलिए वहाँ के जो लोकल लोग हैं, जो कम्युनिटी है,
उनको अपने साथ जोड़िए। पौधे लगाने से पहले वहां पानी की सुविधा और उनकी सुरक्षा की सुविधा जो है उसका आपको अरेंजमेंट पहले करना है। तो ये अगर आपने चीजें कर ली तो धीरे धीरे हमारा फॉरेस्ट कवर बढ़ता जाएगा। फॉरेस्ट्री के जो कॉन्सेप्ट होता है उसमें क्या किया जाता है, फॉरेस्ट इज बेसिकली ग्रुप ऑफ प्लांट्स, अ क्लस्टर ऑफ प्लांट्स, व्हेन वी आर प्लांटिंग टुगेदर इट क्रिएट्स अ फॉरेस्ट। जो आजकल जो हम क्रिएट करते हैं वो मैन मेड फॉरेस्ट है। नेचुरल फॉरेस्ट तो बहुत सारे पहले थे जिनको अब हम कह सकते हैं गायब हो चुके हैं। तो हम मैन मेड फॉरेस्ट जो बना रहे हैं उसके 3 तकनीक हैं। एक जो हमारी ट्रेडिशनल है, जो हमारी सरकारी विभाग ज़्यादातर करते हैं, जिसमें वो करीब 12-12, 10-10, 12-12 फुट पे पेड़ पौधे लगाते हैं। और कई कई जगहों पे तो सरकारी विभाग एक तरह के ही पेड़ पौधे लगा देते हैं। आप जाके देखेंगे तो सफ़ेदा ही सफ़ेदा लग रहा होगा या कीकर ही कीकर लग रहा होगा हर जगह पे। तो एक तो वो हो गया ट्रेडिशनल जो मेथड चलता आ रहा है, पर इससे क्या होता है, जो उसकी एक मूल जो स्वरूप है उस मिट्टी का, उस जगह का, वो गुम जाता है। तो हमें जो फॉरेस्ट लगाने हैं वो लगाने हैं मिक्स्ड फॉरेस्ट, क्लस्टर फॉरेस्ट, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ रह सकें, ज़्यादा से ज़्यादा वो जल्दी ग्रो कर सकें, और जितने ज़्यादा हमारी वैरायटी होगी उतना ही हम उनको प्रिजर्व कर पाएंगे, वरना धीरे धीरे वो कुछ कुछ प्रजातियाँ विलुप्त हो जाएंगी। इसलिए क्लस्टर फॉरेस्ट लगाना बहुत ज़रूरी है जो मैन मेड हम लगाते हैं। एक और तकनीक है जिसको कहा जाता है मियावाकी। अकीरा मियावाकी जी थे, एक बॉटनिस्ट थे जैपनीज। इन्होंने ये टेक्निक जो है पूरे देश भर में अपने पहले ट्राई किया, उसको सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया। उसके बाद पूरी दुनिया में उस मियावाकी तकनीक से हज़ारों जंगल आज की डेट में लगाए जा रहे हैं। हमारे इंडिया में भी बहुत से लोग हैं जो मियावाकी तकनीक पे काम कर रहे हैं। हमने भी इसको अभी शुरू किया है। आप अगर लाइव सैंपल देखना चाहें, जिसमें आपके कॉलेज के स्टूडेंट्स भी गए थे, तो एक गाजीपुर लैंडफिल है जो कि हमारा सबसे बड़ा लैंडफिल कहलाता है दिल्ली का। वहीं उसी की एंट्री पे एक हमने छोटा सा 1000 पेड़ों का मियावाकी फॉरेस्ट लगाया है। तो इसी को हम अर्बन फॉरेस्ट कहते हैं, जिसमें करीब 1 वर्ग मीटर के अंदर 3 तरह से लेके 5 तरह के पौधे लगाए जाते हैं। इसमें क्या होता है कि जो रूट्स होती हैं सारे पौधों की, वो आपस में नीचे जाके कनेक्ट करती हैं। जैसे हम कहते हैं, एक फैमिली में अगर आप ग्रो करेंगे तो आप बहुत कुछ सीखते हैं और जल्दी ग्रो करते हैं। पर अगर आपको एक अकेले कमरे में छोड़ दिया जाए तो आपकी जो हम कहते हैं ना मेंटल ग्रोथ या सोशल ग्रोथ जो है वो कंपेरेटिवली मेजॉरिटी केसेस में कम होती है। कुछ एक्सेप्शन केसेस भी होते हैं जो अकेले रह के ही वही लोग जीनियस भी बनते हैं, पर इन जनरल अगर हम बात करें तो कलेक्टिव जो ग्रोथ होती है वो हमेशा एक अच्छी हेल्दी ग्रोथ होती है। तो उसी कॉन्सेप्ट पे, जैसे हम कहते हैं इनमें भी जीवन होता है, पेड़ों में भी, उसी तरह से क्लस्टर प्लांटेशन के थ्रू ग्रोथ जल्दी होती है, सर्वाइवल ज़्यादा होता है। इन्हीं चीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने कई जो हमारे आसपास में अच्छे जो फॉरेस्ट एरियाज हैं या वेटलैंड बने हैं, उस पर हमने स्टार्ट किया था नेचर वॉक, जिसमें हम बच्चों को या कॉर्पोरेट के या बाहर के जो वॉलंटियर्स हैं, जनरल पब्लिक है, उनको लेकर जाते हैं। उन्हें पर्यावरण के बारे में, वेटलैंड्स के बारे में, पेड़ों के बारे में, वाटर बॉडीज़ और उनकी इंपॉर्टेंस के बारे में बताते हैं। और वहीं पे हम उनके साथ कुछ एक एक्टिविटी भी करते हैं रिगार्डिंग एनवायरनमेंट, जिससे कि उनका एक जो है फिजिकली वो अटैच हो सके। एक नेस्ट होते हैं, बर्ड नेस्ट होता है, वो बर्ड नेस्ट बनवाते हैं हम उनसे। वहीं पे हम छोटे छोटे चाय के जो कुल्हड़ होते हैं उनको ले जाके उसी के अंदर सीड सो करवाते हैं, ताकि उसको जब वो प्लांट बड़ा हो जाए तो अपने घर में लगा सकें। अवेयरनेस के लिए वॉल पेंटिंग, ये भी आपके स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे से एंजॉय किया। म्यूरल वॉल पेंटिंग आपने बहुत जगह देखी होंगी, स्ट्रीट्स में आप आजकल जाते हैं, पिछले कुछ 3-4 सालों से आपने देखा होगा स्ट्रीट्स के ऊपर वॉल पेंटिंग दी हुई है जिसमें अवेयरनेस होती है। कुछ कल्चरल पेंटिंग्स होती हैं, कुछ अवेयरनेस पेंटिंग्स होती हैं। तो ये बहुत सारे छोटे छोटे इनिशिएटिव्स हैं जो हमने स्टार्ट किए थे कुछ सालों पहले, और इनके थ्रू हमने बहुत अवेयरनेस, अगर हम कहें तो हमारा अवेयरनेस प्रोग्राम जो है बहुत सक्सेसफुल रहा है। साथ साथ में अब जो आपने बताया था कि हम इको विलेजेस पे भी काम कर रहे हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग पे भी हम विलेजर्स को मोटिवेट कर रहे हैं। अभी तक हम लोग ज़्यादातर जो है सब खाना पीना जो हम खाते हैं, खास करके शहरों में, वो एडल्ट्रेटेड खाना होता है सारा, उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल मिला होता है, इसलिए हम लोगों को प्रॉब्लम्स भी हेल्थ की ज़्यादा हो रही हैं। उसी को एड्रेस करने के लिए जो हमारी जो पुरानी, अगर हम बात करते हैं, खेती होती थी, वो जैविक खेती होती थी, ऑर्गेनिक फार्मिंग जिसको हम कहते हैं। तो नेचुरल और ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए हम फार्मर्स को मोटिवेट करते हैं और कोशिश करते हैं कि जितना हो सके उनका जो प्रोड्यूस आया, जो भी उन्होंने पैदावार बनी, उसको लोगों तक सही तरीके से पहुंचा सकें। इसी बेसिस पे ताकि लोग उसको प्रमोट कर सकें, गांव वालों को अच्छे इनकम हो सके, हमने इको विलेजेस कॉन्सेप्ट पे भी थोड़ा काम किया है। नैन खेड़ी करके एक जगह है सहारनपुर के पास में, वहाँ पे हमने इको विलेज किया है। वहीं पे ही आप ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रही है, वहीं पे ही पॉन्ड है, वहीं पे पॉन्ड में बोटिंग भी हो रही है, वहीं पे ही रेस्ट हाउस बना है जिसमें आप एज अ गेस्ट जा सकते हैं, आप वहाँ पे स्टे कर सकते हैं। आप लोग होटल में जाते हैं इतनी दूर दूर घूमने, हज़ारों रुपया खर्च करते हैं जस्ट
एक कमरे में रुकने के लिए और एक लेक व्यू देखने के लिए। तो आप ऐसी इको विलेजेस में जाइए, वहाँ पे आपको लेक व्यू भी मिलेगा, आपको बोटिंग भी मिलेगी, आपको खाना भी शुद्ध मिलेगा और आपको बहुत कम कॉस्ट पड़ेगी। और सबसे बड़ी चीज़ है, जो आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे वो भी उन विलेजेस में जहाँ पे सबसे ज़्यादा आज की डेट में ज़रूरत है, क्योंकि कोविड में पलायन बहुत ज़्यादा हुआ। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैं शेयर करना चाहता था, जो हमने इनिशिएटिव्स लिए हैं, जो हमने काम किए हैं और जिसमें हम सबका सहयोग चाहते हैं ताकि एक बड़ा एक मूवमेंट बन सके। Coming back to our water conservation, I'll again hand over it back to Ramir Bhai so that he can share on the pond conservation and water initiatives. Yeah, thank you, Mohit. Can you please move to the previous slide? या अभी मैं तालाबों का आपके साथ जिक्र कर रहा था कि तालाब खत्म हो गए हैं या फिर किस तरह से तालाबों के खत्म होने से आजकल हमारी जिंदगी में इतनी सारी परेशानियां बढ़ गई हैं। ये हालांकि इनडायरेक्टली परेशानियां हैं जिनको एक दो को ही हम देख सकते हैं। इसके अलावा इस तरह की परेशानियां नेचर को या ह्यूमन बीइंग्स को हो रही हैं जो हम डायरेक्टली अपनी आंखों से नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन उनका बहुत लंबे समय में एक बहुत दुष्परिणाम देखने को मिलेगा। चलो अब बात करते हैं हम कि तालाबों में हम क्या-क्या प्रॉब्लम है, क्यों तो तालाब मर रहे हैं, क्या उनका खत्म होने का कारण है, वो हालाँकि मैंने अभी बताया था। तो एक अगर आप ज़्यादातर तालाबों में देखते हैं तो एक बड़े पत्तों की घास होती है, तालाबों के ऊपर जमी हुई होती है ज़्यादातर और उसमें पानी नहीं दिखता, सिर्फ घास-घास दिखती है। तो उसको हम कहते हैं वाटर हायासिन्थ। वाटर हायासिन्थ एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है आज इंडिया की वाटर बॉडीज़ के लिए। और ये होती क्यों है? ये एक्चुअली एक एक्वेटिक वीड है और जो यूट्रोफिकेशन की वजह से होती है या हम कह सकते हैं इम्बैलेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स की वजह से होती है। इसको आप इस तरह से देख सकते हैं कि अगर हम और आप कोई भी है, उसके अंदर आप उसको आप खाना खिलाते रहें, हम खुद भी या खाना खाते रहें जिसके अंदर बहुत सारे हेवी न्यूट्रिएंट्स हैं, खाना खाते रहें और काम कुछ ना करें, मीन्स वो जो एनर्जी हम ले रहे हैं वो कहीं पे भी कंज़्यूम ना हो। तो हाँ, क्या होगा? एक ही चीज़ होगी, हमारा पेट निकल जाएगा और बहुत सारी तरह की बीमारियाँ लग जाएँगी। वही हमारी वाटर बॉडीज़ के साथ भी हो रहा है। जब तालाब में डायरेक्ट सीवेज जाता है, डायरेक्ट ऑर्गेनिक वेस्ट उसमें डा जाता है, तो न्यूट्रिएंट्स भी उसी के साथ जाते हैं। अब उस तालाब के जो न्यूट्रिएंट्स हैं, उनको कंज़्यूम करने वाला कोई है नहीं, क्योंकि उसके अंदर एक्वेटिक लाइफ़ खत्म है। होता क्या है कि उसमें अंदर वाटर है, वो एनर्जी एक्वेटिक वीड्स की फॉर्म में बाहर निकलती है और बड़ी-बड़ी चारों तरफ एक्वेटिक वीड उसमें फैल जाती है। आप फिर से निकालेंगे वो फिर से होगी, फिर से निकालेंगे फिर से होगी। उसका सॉल्यूशन ये है कि कैसे करके हम उन जो सीवेज के साथ न्यूट्रिएंट्स जा रहे हैं, उनको हम कैसे ही बाहर या तालाब में जाने से पहले कुछ ऐसा सिस्टम करें कि या तो वो रुक जाएँ या फिर उसको कोई चीज़ कंज़्यूम कर लें। तो उसके लिए आजकल कुछ ट्रीटमेंट प्लांट्स चल रहे हैं, जैसे कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड है, जिसमें कुछ एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं जो उन न्यूट्रिएंट्स को अपने अंदर पॉल्यूटेंट्स को, न्यूट्रिएंट्स को सक करते हैं। तो उसके बारे में मैं आगे स्लाइड में एक्सप्लेन करूँगा। एल्गी इन पॉन्ड्स, एल्गी तो एक नेचुरल प्रॉब्लम है, लेकिन ये भी काफ़ी टाइप्स की होती है। एल्गल ब्लूम होता है इसमें, जो कि काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है कई बार। डायरेक्ट डंपिंग ऑफ सॉलिड वेस्ट हमारी आदत बन गई है या फिर हमने तालाबों को एक सिंक होल समझ लिया है। अपने जो आस-पास के नाले या तालाबों को एक सिंक होल समझ लिया है, उसमें कुछ भी डालिए, चीज़ें गायब। आप कुछ भी नाले में डाल रहे हैं, हमारे लिए वो एक पल में गायब हो जाती है या फिर हमारे लिए वो खत्म हो जाती है, लेकिन वो जाती कहाँ? उसका डेड एंड जाके एक वाटर बॉडी में ही होना है। या तो वो तालाब में जाके रुकेगा या लेक में जाके रुकेगा। उसकी जर्नी जाके हमेशा वाटर बॉडी में खत्म होती है। जैसे आप अगर गोवा के आस-पास रहते हैं, तो आप कुछ भी नाले में डालिए, बड़े नाले में डालिए, घूम के वो समुद्र में ही जाएगा। आप अगर गाँव में रहते हैं, तो किसी भी नाली में कुछ डालिए, वो घूम फिर के तालाब में जाएगा। तो डायरेक्ट डंपिंग जो हो रही है वाटर बॉडीज़ में, और दूसरी चीज़, कुछ तो नाली और नाले के भी वेट नहीं करते, सीधे तालाब में जाके फेंक देते हैं। जैसे नवरात्र के दिनों में और गणेश चतुर्थी के दिनों में बहुत सारा मूर्ति के साथ-साथ बहुत सारा दूसरा वेस्ट डाला जाता है। कई बार घरों का पूरा जो कूड़ा होता है वो तालाब में फेंका जाता है। उस वजह से तालाब धीरे-धीरे क्या होता है, डंपिंग यार्ड कन्वर्ट हो जाते हैं और ऐसे ज़्यादातर 70% 70% वाटर बॉडीज़ डंपिंग यार्ड है।
अगर गाँवों में आप जाके देखेंगे। कैचमेंट अगर एरिया की हम बात करें तो देखिए तालाब जहाँ पे भी बनते थे उसका मैं पहले भी जिक्र कर रहा था कि एक साइंस था। उसका एक कैचमेंट एरिया का ध्यान रखा जाता था कि कहाँ-कहाँ तक का पानी, वर्षा जल, रेन वाटर अपने आप घूम फिर के तालाब की तरफ आ जाएगा। उसको कहते हैं कैचमेंट एरिया। जिस एरिया का पानी अपने आप अ, उसको फिसल के या फिर बह के तालाब की तरफ आ जाए। तो कैचमेंट एरिया में तो अब बन गए मकान, बीच में बच गया तालाब। तो उसमें सिर्फ वही पानी आ पाता है जो उसके ऊपर बरसता है और वो 2 महीने सूख जाता है। तो कैचमेंट एरिया खत्म होने से तालाब खत्म हो गए हैं। डायरेक्ट सीवेज कनेक्शंस अभी मैं जिक्र कर रहा था कि सीवेज गाँव में जो जितने भी सीवेज ड्रेन हैं वो तालाबों से जोड़ दिए। तो अब वो खत्म हो गए हैं, न्यूट्रिएंट्स इतने ज़्यादा आ गए हैं, गंदगी इतनी सारी आ गई है उसमें। दूसरा एंक्रोचमेंट। एंक्रोचमेंट सबसे पहले मैं जिक्र कर रहा था एंक्रोचमेंट जो अतिक्रमण लोगों ने उस पे कब्जा कर लिया है। उस पे लोग भी पीछे नहीं हटे, रेजिडेंट्स भी पीछे नहीं हटे और सरकारी डिपार्टमेंट्स भी पीछे नहीं, बिल्डर्स भी पीछे नहीं है। तो ज़्यादातर वाटर बॉडीज़ पे मैं कहूँगा 80 टू 90% वाटर बॉडीज़ पे चाहे वो थोड़ा-सा एंक्रोचमेंट हो, लेकिन एंक्रोचमेंट है। कंस्ट्रक्ट इसी वजह से जो है तालाबों को हम रिवाइव अच्छे से भी नहीं कर पाते हैं कई बार क्योंकि उसका 70% एंक्रोचमेंट हो चुका है, 30% में अब कर पाते हैं, उससे ज़्यादा एनवायरमेंटल बेनिफिट्स नहीं मिल पाते। लेकिन ये है कि 30% जो बचा है उसकी एक उम्र बढ़ जाती है। तालाब जो हम रिवाइव करते हैं उससे ये फ़ायदा नहीं है सिर्फ़ कि वाटर कंज़र्वेशन होगा या फिर ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा। उसका फ़ायदा एक दूसरा है कि जो बचा हुआ हिस्सा है वो अगले 1 साल में ख़त्म होना था, अब वो हो सकता है अगले 10 साल में भी ख़त्म ना हो, तो उसकी हम उम्र बढ़ा देते हैं। कंस्ट्रक्शन वर्क ये तो अभी कैचमेंट एरिया से जुड़ा हुआ ही है। मल्टीपल डिपार्टमेंट्स ओनरशिप ये थोड़ा टेक्निकल है कि वाटर बॉडीज बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के अंदर जुड़ी हुई है। हालाँकि जब से अब जल शक्ति मंत्रालय बना है, ये प्रॉब्लम कहीं हद तक सॉल्व हो गई है। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट। हाँ, ये एक प्रोसेस फ्लो है कि किस तरह से हम वाटर बॉडीज को रिवाइव करते हैं। हालाँकि थोड़ा टेक्निकल है कि जैसे हमने पहले सबसे पहले हम तालाब ढूँढेंगे कि या तो कोई हमें बताएगा कि यहाँ पे तालाब है, प्लीज़ इसको रिवाइव करने में हमारी मदद करिए या फिर कोई ग्राम प्रधान हो, कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो, कोई म्युनिसिपल कमिश्नर हो, जो भी है या फिर खुद हम ढूँढे। तो पहले एक तालाब देखा जाता है, फिर उसको तालाब के लिए एक प्रपोज़ल अ, उस अधिकारियों के साथ या ग्राम प्रधान के साथ उसका विज़िट होगा। फिर उसको करने से पहले, उसमें रिवाइव करने से पहले एक गवर्नमेंट से एक एनओसी ली जाएगी कि हम ये तालाब को रिवाइव करना चाहते हैं। क्योंकि हम सिर्फ़ उसको रिवाइव कर सकते हैं, एट द एंड प्रॉपर्टी वो गवर्नमेंट की है। तो आप किसी के घर को पेंट करना चाह रहे हैं, चाहे वो आपकी अच्छी बात है कि चलो ये घर गंदा है, मैं इसको पेंट कर दूँ। लेकिन घर के मालिक से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। तो वैसे ही वाटर बॉडीज़ गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी हैं। हम हो सकता है उसको रिवाइव करना अच्छा समझ रहे हों, लेकिन फिर भी उससे एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना ज़रूरी है। दूसरा प्रपोज़ल टू स्पॉन्सर। अब उसमें खर्चा भी आएगा, हो सकता है उसमें 2 लाख रुपए का खर्चा आए, 10 लाख का आए, 20 लाख का आए। तो वो पैसे कहाँ से आएँगे? उतने ज़्यादा पैसे तो हमारे पास भी नहीं है कि हम 20 लाख रुपए अपने जेब से कहीं पे खर्च कर दें। तो फिर एक डिफरेंट डिफरेंट कॉर्पोरेट्स होते हैं, सीएसआर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी। तो ये जितने भी बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, उनको अपने नेट प्रॉफिट का 2% इस सोशल वर्क्स में खर्च करना होता है एज़ पर गवर्नमेंट रूल। तो उनको हम प्रपोज़ल देते हैं कि ये तालाब है, इसको रिवाइव करने की ज़रूरत है, गाँव वाले ये वाली परेशानी हो रही है। तो वो प्रपोज़ल अप्रूव करते हैं, कन्फर्मेशन मिलता है वहाँ पे। फिर हम जाके गाँव में जाके पहली बार जाते हैं, फिर हम और वहाँ पे जल चौपाल करते हैं, गाँव के लोगों के साथ मीटिंग करते हैं कि हम ये करने आए हैं, आपका ये सहयोग चाहिए हमें। तो वो सारा डिस्कशन चलता है। फिर तालाब को रिवाइव करने से पहले उसकी वाटर क्वालिटी टेस्ट करते हैं कि अभी तालाब का पानी कितना गंदा है, रिवाइव करने के बाद कितना साफ हो जाएगा। वो सारी चीज़ें हैं, रिस्टोरेशन होगा, प्लांटेशन होगा, फिर उसकी मेंटेनेंस होगी। तो ये एक प्रोसेस है
जब कभी वॉलंटियर्स को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कभी अगर आप आना चाहें तो कुछ वाटर बॉडीज पे अभी भी हमारा काम चल रहा है, तो आके देख सकते हैं सारी स्टेप। नेक्स्ट स्लाइड। ये एक टाइम टेबल है कि एक वाटर बॉडी को करने में स्टेप बाय स्टेप किस स्टेप को कितना टाइम लगता है। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, ये अभी जैसे मोहित भाई ने बताया था कि सेल्फी विद पॉन्ड, हैशटैग सेल्फी विद पॉन्ड। तो सेल्फी विद पॉन्ड का हमारा उद्देश्य था कि हम ऐसे यंगस्टर्स को ढूंढ सकें, उन्हें आइडेंटिफाई कर सकें जो तालाब के पास जाकर कम से कम सेल्फी लेने की हिम्मत रखते हैं। देखो जैसे अभी हम कह रहे थे कि पेड़ लगाने के बाद उसकी सेल्फी लेते हैं, ऐसे ही तालाबों के साथ सेल्फी लेने के बहाने से कम आज हमारे युवाओं को तालाबों की हालत का पता चलेगा। दूसरा, हमें पता चलेगा कि किसके दिल में आज भी तालाबों के लिए प्यार है, वो तालाबों के बारे में सोचते हैं, या फिर उन्हें कम से कम एहसास हो, उनकी बचपन की यादें तालाब से जुड़ी हों। तो अरे यार, इस तालाब में तो मैं नहाता था, लेकिन अब तो ये खत्म हो गया, इसमें तो बदबू आ रही है। तो ऐसे युवाओं को हमने एक चैलेंज दिया, हैशटैग सेल्फी विद पॉन्ड, कि आप अपने तालाब के पास जाइए और सेल्फी लेके अपलोड करें। तो उस कैंपेन को हमें लगभग 10,000 यंगस्टर्स ने पूरे देश से विदेश से सपोर्ट किया। और हम अब नए कभी भी मान लो हम राजस्थान में जा रहे हैं, तो हम राजस्थान में पहले ये देख के जाते हैं कि हमको किस किसने सपोर्ट किया था वहां पे। हमें उससे तालाब में दिखने वाली फोटो में दिखने वाली तालाब की हालत भी नजर आती है, उस बंदे का कॉन्टेक्ट भी हम एक सेव कर लेते हैं उससे बात करके। तो ये हमारे लिए भी हेल्पफुल है, और जिनका तालाब गंदे हो गए उनके लिए भी हेल्पफुल है। जल चौपाल हम जिक्र कर चुके हैं आपके साथ, नेचर वॉक बता चुके हैं। तो ये सारी हमारी कुछ वॉलेंट्री अपॉर्चुनिटी है जो पहले आप आए हैं, जैसे क्लीन ड्राइव्स। जल चौपाल की आप फोटो देख सकते हैं, क्लीन ड्राइव्स की राइट साइड में देख सकते हैं, और सेल्फी विद पॉन्ड की सबसे लेफ्ट साइड में देख सकते हैं। तो ये सारे कैंपेन हैं जिनमें आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, असली पीपीटी हमारी अब शुरू होती है। और ये जैसे अगर ऊपर वाला, क्योंकि हम तालाबों की अब तक थ्योरी पे जस्ट जिक्र कर रहा था कि तालाब हम ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन तालाब कैसे करते हैं और करने के बाद वो कैसे लगते हैं, वो आप पिक्चर्स में आई थिंक अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे अगर आप ऊपर वाला फोटो देखते हैं, तो ये चंडीगढ़ अंबाला के पास एक तालाब है, मोही कला। तो वहां का ये तालाब है कि बिफोर में ये पहले कैसा दिखता था और रिवाइव करने के बाद कैसा दिख रहा था। दूसरा, कुछ दो तालाब जैसे मैं बता रहा था, इन पे एंक्रोचमेंट हो चुके हैं। मान लो पहले वो 20,000 स्क्वायर मीटर उसका एरिया था, लेकिन अभी 5,000 स्क्वायर मीटर बचा है। तो जितना भी एरिया बचा है, क्यों ना उसको रिवाइव किया जाए, क्यों ना उसको बारिश के लिए तैयार किया जाए। तो ये एक दूसरा एग्जाम्पल है कि बारिश के लिए तालाब को एंक्रोचमेंट हटा के वहां पे तैयार किया गया, और अब कैसे वो पानी से भर गया बारिश में। नेक्स्ट स्लाइड। ये इस समय हमारे कुछ तालाबों का रिवाइवल चल रहा है, और ये उन्हीं में से एक है। जैसे ये है गाजियाबाद का तालाब, ऊपर गार्बेज और वाटर हाइसिंथ से पूरा वाटर बॉडी भरी हुई है, और रिवाइव करने के बाद या क्लीन अप करने के बाद वो किस तरह की दिख सकती है। तो ऊपर आप देख सकते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते कि इसके नीचे पानी निकलेगा, और इसकी जिसकी गहराई है 15 से 20 फीट तक। तो सोचिए कितना मिलियन ऑफ लीटर वाटर इसमें भरा पड़ा है। नेक्स्ट स्लाइड। ये एक दूसरा तालाब है, ग्रेटर नोएडा का एक तालाब है। इसमें आप जो ग्रीन ग्रीन देख रहे हैं, इसको कहते हैं हम डकवीड। डकवीड भी वाटर हाइसिंथ की तरह एक यूट्रोफिकेशन की वजह से होता है, और लेकिन इसको नेचुरली और दूसरी तरह से भी रिवाइव किया जा सकता है। कई बार कुछ फिशेस भी इस तरह की आती हैं, इनको अगर हम इस तरह के तालाबों में छोड़ दें, तो वो पूरे को खा जाती हैं और तालाब को साफ कर देती हैं। तो ये उसी का एक एग्जाम्पल है कि किस तरह से हम नेचुरल तरीके से तालाब को रिवाइव कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ये अगेन अभी एक ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है हमारा गाजियाबाद के नायफल गांव में। तो ऊपर आप देख जैसे तालाब में से
करने के बाद वो फिर से क्लियर दिखने लगा है। तो ये एक एग्जाम्पल है कि किस तरह से तालाबों से कूड़ा फिर से हटाया जा सकता है, और ऐसा नहीं है कि आप इसको बाहर खड़े-खड़े हटा सकते हैं। इसके लिए पूरी एक स्किल्ड लेबर होती है। अगर इस तालाब की गहराई की बात करूँ तो वो लगभग 15 फीट गहराई है। 15 फीट मीन्स अगर किसी को कम तैरना आता है या नहीं तैरना आता तो वो सफाई करने के चक्कर में डूब भी सकता है। इसलिए हम वॉलंटियर्स को कई बार ऐसे तालाबों पर बुलाना सही भी नहीं समझते। उनकी जान को खतरा हो जाता है, और अगर बुलाते भी हैं तो बाहर से सिर्फ उनसे सफाई करने की रिक्वेस्ट करते हैं और पास ना जाने के लिए। क्योंकि हमारे पास इस काम के लिए एक बड़ी स्किल्ड टीम है, जो 15 क्या, अगर 1500 फीट में भी उन्हें अगर घुसना पड़े तो वो आराम से घुस सकते हैं। उनके पास पूरे टूल्स हैं, बहुत अच्छे गोताखोर जिनको हम कहते हैं। तो हमारे पास बहुत अच्छे गोताखोरों की टीम है जो किसी भी तरह के दलदल या पानी में घुस सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ये इंडिया का, ये अगेन चंडीगढ़ का एक तालाब है, और इंडिया का पहला तालाब है ऐसा जिसमें पानी के अंदर ऑक्सीजन, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, या फिर उसको हम कह सकते हैं एयरिंग के लिए, डिजॉल्व ऑक्सीजन को मेंटेन करने के लिए विंड टरबाइन का यूज किया गया है। और ये इंडिया का पहला था, और एक जर्मन बेस्ड कंपनी ने और चंडीगढ़ बेस्ड एनजीओ की मदद से वहां पे हुआ है, और ये एक बड़ा सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है। अभी भी आप अगर कभी उस तरफ जा सकते हैं तो जाएं तो जरूर विजिट करिए। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, अभी जैसा मैं जिक्र कर रहा था कि पहले तालाब हुआ करते थे, लेकिन वो धीरे-धीरे खत्म हो गए। इसका एक एग्जाम्पल है ये वाला तालाब। ये दिल्ली का एक गाँव है, गाजीपुर, वहाँ पे 40 साल पहले तक एक तालाब था। लेकिन फिर क्या हुआ, गाँव में कूड़ा निकलने लगा, कूड़े डालने की कोई और जगह बची नहीं, तो उसको कूड़े से डाल-डाल के वो तालाब वहाँ से खत्म हो गया। फिर उसके ऊपर थोड़ी मिट्टी डाली और पार्क में कन्वर्ट कर दिया। जब वहाँ पे ग्राउंड वाटर लेवल उतना नीचे चला गया, ग्राउंड वाटर रिचार्ज होना बंद हो गया, तो तब फिर से एनजीटी को, सरकार को, गाँव वालों को फिर से याद आई कि तालाब, तो ये हमें मौका मिला और हमने फिर से 40 साल बाद उस तालाब को फिर से रिवाइव किया है, और अभी भी वो पानी से लबालब है। नेक्स्ट स्लाइड। ये उसकी एक फोटो है, न्यूज़ पेपर की कटिंग है कि 40 साल बाद फिर से एक तालाब बना है। तो ये अपने आप में एक बड़ी खबर है कि ये, क्योंकि मैं कह सकता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो कभी नहीं मरती, जब मर जाती हैं तो हमारी मजबूरी बन जाती है उसको फिर से कहीं से भी ढूँढ के लाना। तालाब वैसी ही चीज़ है। अगर जिस तरह से आज हमें मार रहे हैं, आज हम तालाबों को खत्म कर रहे हैं, एक दिन, मैं दावा करता हूँ कि एक दिन हमें ये ढूँढ-ढूँढ के वापस रिवाइव करने पड़ेंगे। नहीं, तो ना तो हमारा ग्राउंड वाटर बचेगा, ना हमारा इकोसिस्टम बचेगा, और बहुत सारी चीज़ें हमें दुष्परिणाम देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, मैं बात कर रहा था वाटर हाइसिंथ की। वाटर हाइसिंथ, जो आप ऊपर लेफ्ट साइड में एक फ़ोटो देख सकते हैं, ये वाटर हाइसिंथ है, ये ग्रेटर नोएडा का एक तालाब है। इसमें वाटर हाइसिंथ को हम मैनुअली, हमारी टीम के जो लोग हैं वो मैनुअली निकाल रहे हैं। वाटर हाइसिंथ क्योंकि बार-बार आ जाता है और इसको बाहर निकाल कर फेंकना कोई बड़ा काम नहीं है। तो हमने इसको सोचा कि क्यों ना इसको किसी चीज़ में कन्वर्ट किया जाए, या क्यों ना इसका सदुपयोग किया जाए। तो हमने इसका खाद स्टेप बाय स्टेप बनाया है, और आप 4 स्टेप में इसका देख सकते हैं कि पहली स्टेप में उसको निकाला, दूसरी स्टेप में सेकंड उसमें गोबर और वाटर हाइसिंथ और पानी, तीनों चीज़ों को मिक्स किया गया। तीसरी में उसको अगर 40 दिन के लिए जब उस वाटर हाइसिंथ को हम छोड़ देते हैं, तो 40 दिन में जो 2 मज़दूर निकाल रहे हैं, वहाँ पे एक अच्छा खाद, जो खेतों के लिए, प्लांटेशन के लिए काफ़ी काम आ सकता है। तो उस खाद को हम यूज़ कर सकते हैं, और फोर्थ में वो ट्रॉली में भर के उस खाद को हम ले जा रहे हैं। तो ये वाटर हाइसिंथ का एक सदुपयोग है, उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ये अगेन मैं ज़िक्र कर रहा था कि कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड टेक्नोलॉजी, जिसको हम पानी के ट्रीटमेंट के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें कुछ एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं जिनको यूज़ किया जाता है।
तालाब में पानी पहुंचे उससे पहले उस पानी को डेब्रिस से, एक्वेटिक प्लांट से और भी कई चीजों से गुजारा जाता है, ताकि वो पानी के जो हेवी न्यूट्रिएंट्स हैं या फिर पानी के जो पॉल्यूटेंट्स हैं, वो वहाँ पे रुक सकें, उसके साथ जो ऑर्गेनिक वेस्ट है वो पहले रुक सके और पानी कुछ हद तक फ़िल्टर होके उसमें जाए। तो इससे ना केवल पानी की क्वालिटी बढ़ती है, बल्कि तालाब के अंदर जो डिज़ॉल्व्ड ऑक्सीजन है, बीओडी है, उसकी भी मात्रा जो है बैलेंस रहती है। तो इसके बारे में आप वैसे इंटरनेट पे पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे-अच्छे आर्टिकल मिल जाएँगे। ये हरियाणा पलवल का एक तालाब है जहाँ पे हमने इसको फर्स्ट टाइम यूज़ किया है। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, ये तालाबों को देखो, तालाब हम रिवाइव कर सकते हैं, अच्छी बात है। लेकिन क्यों ना तालाबों को ऐसा बनाया जाए कि वो गाँव वालों के काम आएँ, आस-पास रहने वाले लोगों के लिए काम आएँ। तो ये उसी का एक एग्ज़ाम्पल है। ऊपर लेफ्ट साइड में इसमें है लेमन ग्रास, जो तालाब के चारों तरफ लगाई गई है। लेमन ग्रास आप जानते ही हैं कितना चाय बनाने में बहुत सारे मेडिसिनल यूजेस हैं। दूसरा तुलसी है। बीच में जो तालाब है उसमें हम वेटिवर ग्रास लगा रहे हैं। तो ये तीनों घास जो हैं, ये तीनों जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं, ये बहुत हमारी आम ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं और इनको हम डेली यूज़ भी कर सकते हैं। तो ऐसे हमने कई तालाबों पर इस तरह के मेडिसिनल प्लांट्स लगाए हैं, ताकि गाँव वाले लोग तालाबों से फ़ायदा उठा सकें। नेक्स्ट स्लाइड। ये वही तालाब है जिसका हम अभी ज़िक्र कर रहे थे, जिससे वाटर हाइसिंथ निकाल कर हमने खाद बनाया था। वाटर हाइसिंथ निकालने के बाद ये स्टेप बाय स्टेप इसको कैसे एक इको टूरिज़्म की तरह हमने आज बना दिया है। वहाँ पे लोग आज अ, नेचर वॉक करने आते हैं, वहाँ पे लोग सुबह-शाम बैठते हैं और यही ऐसा तालाब था कि इसमें आस-पास कोई अपने बच्चों को भेजने के लिए राज़ी नहीं था। क्यों राज़ी नहीं था? क्योंकि वहाँ पे इतनी दलदल थी कि बच्चे को फँसकर डूबने की संभावना रहती थी। उनकी अगर गाय-भैंस गाँव वालों की उधर चली जाती थी, तो गाय-भैंस कई बार दलदल में फँसकर मर जाती थी या फिर उसको रस्सियों से बाहर निकालना पड़ता था। लेकिन आज गाय-भैंस उन्हीं की उसी तालाब में पानी पीती हैं, उसी तालाब में वो नहाती हैं और उसी तालाब के चारों तरफ उनके बच्चे खेलते हैं। तो ये किस तरह से एक डंपिंग यार्ड जैसे तालाब को इतना सुंदर बनाया जा सकता है, उसका एक एग्ज़ाम्पल। नेक्स्ट स्लाइड। ये जो मोहित अभी ज़िक्र कर रहे थे कि नैनखेड़ी एक तालाब है, नैनखेड़ी एक गाँव है। ये पूरा ये मेरा गाँव जो इनिशिएटिव है, जो मोहित भाई द्वारा लीड किया जाता है पूरा, तो ये उसका एग्ज़ाम्पल है कि कैसे लेफ्ट साइड में वो तालाब हुआ करता था और राइट साइड में रिवाइव करने के बाद अभी वो कैसा दिखता है। अब इस तालाब के चारों तरफ योगा होता है, बोटिंग होती है, मेडिटेशन होता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है। इसके बारे में मोहित भाई अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएँगे। तो ये थे कि तालाबों में किस तरह की प्रॉब्लम्स है और किस तरह से उन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी इम्पॉसिबल है, अगर हम कोशिश करें, एक शुरुआत करें, तो हम कर सकते हैं। तो अब मैं मोहित भाई से रिक्वेस्ट करूँगा कि से आगे वो किस तरह से ये मेरा गाँव के बारे में और नैनखेड़ी के बारे में एक्सप्लेन करें। थैंक यू। आई थिंक हमारा सेशन काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंड हो गया है, तो मैं बस बहुत जल्दी इसको कवर करूँगा। आप ये देख सकते हैं जो तालाब है, ये गांव वालों के प्रयास से ही इसको रिवाइव किया गया है। रामवीर भाई ने इनको पूरा इसके अंदर गाइडेंस दिया, जिससे ये तालाब रिवाइव होकर इतना सुंदर दिखता है। अगर आप इस पे नेक्स्ट स्लाइड पे आएंगे, बेसिकली ये जो तालाब है इसके आसपास ये आप देख सकते हैं ये सारी एक्टिविटीज़। तो एक तालाब रिवाइव होने के बाद गांव में किस तरह से प्रगति हो सकती है, क्या क्या किया जा सकता है ताकि वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, साथ में गांव वालों को और गांव के साथ साथ जो बाकी लोग हैं उनको एक अच्छा खाना अच्छी जगह मिल सके, किस तरह से उसको एक एज अ प्रोजेक्ट ले सकते हैं, वो है हमारा इनिशिएटिव कॉल्ड ये मेरा गाँव, विच इज़ एन इको विलेज। तो इसमें आप देख सकते हैं सुबह योगा करा, ऊपर आप देख सकते हैं थाली में हमने जो यूज़ किया है वो जो खाना है वो सारा ऑर्गेनिक है। कुल्हड़ आप देख सकते हैं ताकि कोई प्लास्टिक वेस्ट जनरेट ना हो, चाहे वो चम्मच हो या खाना हो, है ऑर्गेनिक है। कोई भी प्लास्टिक या कोई भी इस तरह की चीज़ प्रोडक्ट हमारा वेस्ट जनरेट हो, अगर हो तो वो ऑर्गेनिक हो। राइट साइड में आप देख सकते हैं पॉटरी, क्योंकि हमारा जो कल्चर है वो हम धीरे धीरे भूलते जा रहे थे।
सकते हैं। तो पॉटरी का भी वहाँ पे है, चरखा भी है वहाँ पे। इस तरह से छोटे छोटे जो कल्चरल चीज़ें हैं वो हमने वहाँ पे इंट्रोड्यूस करी हुई हैं। ये जो मैम आप देख रहे हैं जो पॉटरी कर रही हैं, ये एक इटली से आई हुई हैं फॉर दिस टूरिज्म इनिशिएटिव। इसके ऊपर इन्होंने रिसर्च करी थी कि किस तरह से हमने ये इको विलेज बनाया है। तो शी स्टेड देयर फॉर दिस नैनखेड़ी विलेज में ये करीब 4 वीक्स तक रुकी थी। किस तरह से वहीं पे ही अपने स्कूल को एक मॉडर्न स्कूल की तरह बनाया है उसके बारे में है। और आप देख सकते हैं किस तरह से सारे जो टूरिस्ट आए हैं जो गांव में, उसको हम बता रहे हैं कि छोटे जो सेंटर पिक है उसमें हम आई थिंक यही मेनली हमारे को कवर करना था इन आर इको विलेज। सो इफ यू कैन गो टू नेक्स्ट स्लाइड। तो ये हमारे कुछ प्लांटेशन इनिशिएटिव्स हैं, आप देख सकते हैं। ये जो लैंड आप देख रहे हैं यहाँ पे जो सब लोग खड़े हैं सारे डॉक्टर्स हैं। धर्मशिला हॉस्पिटल है एक दिल्ली नोएडा के बॉर्डर पे। तो वहीं पे जो उस हॉस्पिटल वालों ने इनिशिएटिव लिया कि ये पूरे लैंड के पास जो है सारा, यहाँ पे पूरा डंपिंग होती थी, यहाँ पे कंक्रीट वेस्ट रहता था। तो यहाँ पे हमने करीब 10-10, 15-15 फुट तक जब खुदाई करी तो हमें दिखा सिर्फ वहाँ पे प्लास्टिक और कंक्रीट का वेस्ट था। तो हमने पूरी लेयर को पहले 5 फुट तक पूरा क्लियर किया पूरे ग्राउंड को, फिर वहाँ पे हमने सॉइल भरा, तो उसके बाद जाके प्लांटेशन करी ताकि वो प्लांट सर्वाइव कर सकें, और उसकी फिर हमने फेंसिंग करी है। तो ये आज अगर आप जाके देखेंगे तो एक अच्छा फलता फूलता सा जंगल बन चुका है। इसी तरह से लेफ्ट साइड में आप देखेंगे बहुत सारे हमारे छोटे छोटे वॉलंटियर्स जो हैं, उन्होंने आके हमारे छोटे छोटे पैचेस जो हमने बनाए हैं उन पे आके कंट्रीब्यूट किए हैं। कमिश्नर सर हैं गाजियाबाद के, सबसे नीचे वाली जो पिक है उसमें पानी देते हुए। तो ये एक हमने साई उपवन बनाया है जो है गाजियाबाद में है, हिंडन मेट्रो स्टेशन के पास में साई उपवन, वहाँ पे एक छोटा सा पैच हमने डेवलप किया है फॉरेस्ट का। नेक्स्ट प्लीज। ये है वही साई उपवन जो मैं बता रहा था। आप ऊपर वाली जो पिक्स देख सकते हैं राइट साइड में, वो साई उपवन की है, और जो नीचे पिक है वो एक हमारा जो दिल्ली का हमने बताया धर्मशिला के पास जो फॉरेस्ट है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से पौधे फल फूल रहे हैं वहाँ। तो यही एक छोटे छोटे हमारे कुछ इनिशिएटिव्स हैं अर्बन फॉरेस्ट के और पॉन्ड्स को रिजुविनेट करने के, जिसमें आप में से कोई भी आए तो वॉलंटियरिंग कर सकता है, आप लोग अपने खुद के इनिशिएटिव स्टार्ट कर सकते हैं। तो बस यही हम लोग आज डिस्कस करना चाहते थे आप सबके साथ। तो मे बी वी कैन जस्ट क्विकली मूव टू नेक्स्ट फ्यू स्लाइड्स। सो दिस कमिश्नर सर हैं एचएल के जो मालिक हैं वो हैं रामी भाई के साथ। ये कानपुर पॉन्ड सेंटर में जो है सर के शक्ति मंत्रालय के एडिशनल सेक्रेटरी हैं उनके साथ। ये कुछ फोटोज हैं जो हमारी इन्हीं पॉन्ड्स के आसपास हमने अधिकारियों के साथ जो ली थी। नेक्स्ट प्लीज। तो ये हमारे कुछ, जैसे हमने बताया था, जो हमारा पूरा जो प्रोसेस है इसमें हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं। कोई भी आप धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहते हैं वो कारवां सा बन जाता है। तो ये हम जो इनिशिएट किया था वो चलते चले और उनके साथ लोग जुड़ते चले, और उन लोगों के साथ साथ उस कारवा के साथ साथ आज इतनी सारी जो बड़ी बड़ी कंपनीज आप देख रहे हैं ये सब हमारे सपोर्ट करती हैं। इन्हीं की स्पॉन्सरशिप से, इन्हीं के द्वारा दिए गए CSR फंड से हम इतने सारे तालाबों को और इतने छोटे छोटे जंगल जो है हम वो बना पा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें बड़ी से बड़ी कंपनीज भी हैं और सरकारी विभाग भी हैं, सियाबाद का हो या दिल्ली का हो। तो इस तरह से हमारे पार्टनर्स भी हैं, प्रयास है, सेटरीज है, इस तरह से हमारे साथ कुछ और NGOs हैं जो हमारे साथ मिलकर काम करते हैं। तो जो हमारी जो CSR है, हमारे को एक चीज़ और ध्यान रखनी है। CSR तो हो गया कॉर्पोरेट फंडिंग कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो अपना 2% जो भी रेवेन्यू है वो डोनेट करते हैं। पर क्या हम इस CSR की डेफिनेशन डे टू डे लाइफ में एज एन इंडिविजुअल इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? तो क्या हम उस CSR को, जिसको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं, क्या हम इसको सिटीजन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बना सकते हैं? ये चीज़ है जिसपे हमें सोच विचार करना है और जिसको हमें अपना अमल करना है, तभी हम एक बड़ा बदलाव ला सकेंगे।
जब तक हम इसको सिटीजन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनाएंगे, सिर्फ बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स पे छोड़ देंगे इन बड़े इनिशिएटिव्स को, तब तक एक बहुत बड़ा बदलाव आना असंभव है। तो बस यही कुछ चीज़ें थी जो हम शेयर करना चाहते थे आप सब लोगों के साथ। और आई थिंक बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका था। आई विल गो बैक टू श्रेयस एंड रत्ना मैम की अगर स्टूडेंट्स के कुछ इस हमारे इनिशिएटिव्स के बारे में या कुछ वो अपने इनिशिएटिव्स लाना चाहते हो तो उसके कुछ क्वेश्चंस हो तो दे कैन आस्क। Thank you so much, Mohit sir and Ramveer sir, for gracing our occasion today. And I really, this talk was so simply explained that everything is absolutely crystal clear for me. So I hope it's also crystal clear for everyone else as well. But there are a lot of questions lined up for me in this side, and I would start with it. But if there are any participants who wish to ask any question directly to our speakers, then they may use the hand raise button, and our team and in the back end they'll manage, and you can ask the question also directly. That is also possible. But I'll start asking questions right away. So, sir, this question is for actually both of you. Recently, this question is actually in line with the plantation thing that you were saying, sir. That recently, the Union Cabinet has passed a palm oil. You must be aware, sir, a palm oil initiative, where palm oil culturing has been given a lot of push. So उसके मोनोकल्चर्स बहुत सारे हो सकते हैं, इसका मतलब यही है. So, sir, will it be a good step for our country to move in that direction? Because monoculture of anything you said ki it's not very good. A mixed one is much better. And plus palm oil बहुत पानी ले लेता है ground water table से. Right. So basically, I'm not a scientist. I may not be able to answer it thoroughly, but yes, as per my understanding, what I'll share is, see, change is inevitable, right? Change होगा तभी हम डेवलप भी करेंगे, बट वो चेंज सस्टेनेबल होना चाहिए, एज वी सेड, राइट? तो अगर हम कोई भी नई चीज़ ला रहे हैं, चाहे कोई वो मोनोकल्चर हो, चाहे जैसे हमने कहा कि हमने एक हरित क्रांति आई थी कुछ वर्ष पूर्व, राइट, जिसमें हमने यूरिया इस्तेमाल करना शुरू किया था, तो उससे क्या हुआ था, उत्पादन तो बहुत ज्यादा बढ़ गया था, पर क्या हो सकता है भुखमरी हो, या उस टाइम पे क्या सिचुएशन रही कि गवर्नमेंट ने ऐसा इनिशिएटिव स्टार्ट किया, ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसमें यूरिया का उत्पादन किया गया और उसका यूज किया। तो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं वो लॉन्ग टर्म होती हैं, 5 ईयर, 10 ईयर, 20 ईयर प्लान हम आज में सोचते हैं, और कुछ रिपरकशंस जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म में ही हमें पता चलते हैं। इसी तरह से तो लॉन्ग टर्म में हमें पता चलेगा कितना फायदा है और कितना उसका नुकसान होगा। इसी तरह से मोनोकल्चर का भी हमें लॉन्ग टर्म में पता चलेगा कि शॉर्ट टर्म हो तो केमिकल फार्मिंग से ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल की तरफ आना है, तो हमें अगर अपने जो मूल रूप है अगर हम उसको नहीं छोड़ेंगे, और ये बाकी के जो इनिशिएटिव्स हैं, चाहे वो मोनोकल्चर हो, चाहे वो प्लांटेशन हो, चाहे वो केमिकल फार्मिंग हो, किसी भी तरह का इनिशिएटिव हो, उसको अगर हम लिमिटेड कैपेसिटी में करेंगे, एक जिसमें आप प्योर फॉर्म को भी अपना रिटेन कर रहे हैं, एनवायरनमेंट को भी कंजर्व कर रहे हैं, और दूसरा आप जो नीड है, जो करंट नीड है हमारी कंट्री की, चाहे वो इकोनॉमिकल हो, चाहे वो फार्मिंग नीड हो या सोशल नीड हो, उसको फुलफिल कर सके। तो वो बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है सस्टेनेबिलिटी के लिए। तो इट इज डेफिनेटली अ स्टेप should be welcomed by people, but it should be having a cap and it should be monitored well to see the long term consequences. ठीक है सर, थैंक यू सर. सर, और एक सवाल है कि वाटर बोरिंग एंड रिजल्टेंट ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर इज अ क्रिटिकल इशू इन मेनी एरियाज, पर्टिकुलरली दिल्ली एनसीआर. तो कह रहे हैं सर, यहाँ पे जो सवाल पूछ रहे हैं कि हाउ कैन वी स्प्रेड अवेयरनेस टू स्लो दिस डाउन, ऑल्सो व्हाट आर द अल्टरनेटिव्स वी कैन adopt to prevent the sinking of water table.
So can you repeat the question? I think there was Sure, sir. Matlab, basically the interference in question my is line. asking how to make it more aware. The thing that we are all discussing all I this. think the line is breaking. Oh, sir, My am network I issue. audible now? Yeah. Okay, sir. So basically the question is about how to make people aware. How to make people more aware. Okay. And what can we do as individuals? Parts of it. Yes. So awareness has two parts. One is self-consciousness. We all know what is right and what is wrong. And sometimes if we are confused, we do not have the clarity. Nowadays available through technology which you can learn, which you can get information on and you can enhance your skill set. तो एक तो ये होता है कि हम अवेयरनेस सेल्फ जो लर्निंग कहते हैं. दूसरा अवेयरनेस इज व्हेन यू गो आउट और यू स्टार्ट क्रिएटिंग इम्पैक्ट इन द सोसाइटी, इन द कम्युनिटीज, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा रोल प्ले करती है गवर्नमेंट और वॉलंटियरिंग एंटिटीज, चाहे वो कॉरपोरेट हों, चाहे वो एनजीओज हों, कॉलेज ग्रुप्स हों लाइक योर्स, Aranya and Srishti, right? आप लोग you are working on these initiatives of awareness, right? In your college, in different communities. So awareness दो तरह से है. One, and second is self-learning. So you have to basically engulf both of them. There has to be an amalgamation of both of these, and then it has to be spread across. Like हमारा अगर हम बात करें स्वच्छ भारत मिशन जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने लॉन्च किया, ऐसा तो नहीं है कि कभी स्वच्छता प्रोग्राम कभी पहले नहीं हुआ, पर 2014 में जब उन्होंने इसकी शुरुआत करी और इसको जोड़ा गांधी जी के 2 अक्टूबर में बहुत विश्वास करते थे, तो वो एक इनिशिएटिव होता. तो इस तरह के आपको ध्यान रखना है कि आप कोई भी इनिशिएटिव लें उसको सही तरीके से उसको प्रेजेंट करें, उससे कुछ ना कुछ उससे रिलेट करें ताकि वो एक अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट कर सके. Yes. So awareness has to be there, but in a timely manner. Okay, sir. Thank you, sir. Sir, I'll ask the last two questions because due to paucity of time to Ramveer sir. Sir, are you there? So if Ramveer sir is not there, sir, if you could answer in his absence. Yeah, Parmit, I'm here. Oh, okay, sir. Okay. I couldn't see you, sir. That's right. Okay, sir. So, sir, there's one question that how do you respond to the political atrocities restricting you to work to your fullest? Hello. Sir, can you hear me? Hello. Can you please repeat the question? Sure, sir. Sir, the question was, how do you respond to the political atrocities restricting you to work to your fullest? Yeah, that's a good question, Parmit. Actually, there are lots of restrictions in our work, and political is one of them. तो बट जब प्रॉब्लम होती है तो उसका सॉल्यूशन भी उसी के साथ साथ मिल जाता है. बट इसकी अच्छी बात यह है कि हमारे इसमें पॉलिटिकल तो है, बहुत ज़्यादा है थोड़ा सा, क्योंकि जो लोग तालाबों पर एंक्रोचमेंट करना चाहते हैं, लाइक उनका फ्यूचर प्लान है कि मुझे तो 10 साल बाद इस तालाब पे अपना घर बनाना है. और कि दिल्ली एनसीआर की अगर बात करें तो तालाबों या फिर एक जमीन की कीमत कितनी होती है, मीन्स अगर उसने 100 स्क्वायर मीटर पे भी अगर कब्जा कर लिया, दैट इज वेरी स्मॉल वन, तो मीन्स उसका 10 से 12 लाख रुपए का काम हो गया. तो अगर जो लोग फ्यूचर प्लान होते हैं या फिर जिनका एक पार्ट भी एंक्रोच होता है और उनको डर लगे कि अगर ये तालाब को रिवाइव किया गया तो हो सकता है जितना पार्ट हमने एंक्रोचमेंट किया हुआ है उसको भी छोड़ना पड़े हमें, तो दे डू एनीथिंग, दे जस्ट डू एनीथिंग कि वी कैन स्टॉप आवर वर्क, वे डू ऑल द पॉलिटिकल थिंग्स दे डू, है ना. और आसपास के आप जानते ही हैं ग्राम प्रधान, ये सारी चीजें, इनका अलग लेवल होता है थोड़ा सा सोचने का. बट ये है कि अभी काम करते करते उतना एक्सपीरियंस हो गया है कि इन सब चीजों से निपटने की हो गई है. मैंने जो एनओसी की बात करी थी आपसे कि हम कोई भी काम अगर चाहे वो एफोरेस्टेशन कर रहे हैं या वो रिवाइवल कर रहे हैं,
तो एनओसी इज मैंडेटरी, बिना एनओसी के भी वो काम हो सकता है, नो प्रॉब्लम। बट एनओसी जो एक गवर्नमेंट का अप्रूव्ड लेटर हमारे पास होता है, वो इसी तरह की प्रॉब्लम से निपटने में काम आता है कि अगर कोई इस तरह की प्रॉब्लम होती है, मान लो कोई झूठी कंप्लेंट कर दे अभी हमारे खिलाफ कि ये जो इस तालाब से मिट्टी निकल रही है इसको ये बेच रहे हैं ना, तो हमारे ऊपर हो सकता है 10 साल तक हम जेल से बाहर ना आ पाए अगर एक झूठी कंप्लेंट से भी। लेकिन क्योंकि हमारे पास एक पूरा गवर्नमेंट से अप्रूवल, एनओसी लेटर्स, ये सारी चीजें होती हैं, तो उनका चांस बहुत कम हो जाता है ना। या फिर हमने एक तालाब बनाया, उसमें कल को कोई इंसिडेंस हो जाए कि उसमें कल को एक बच्चा गिर जाए, कल को उसमें कोई किसी को चोट लग जाए, तो दैट उस तब भी एक प्रॉब्लम हो सकती है तब, है ना। तो उसके में भी काम आता है, अगर एनओसी है तो ये सारी प्रॉब्लम तब भी सॉर्ट आउट हो सकती हैं। मतलब सर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करके रखेंगे तो इट बिकम्स मोर इजी फॉर एनीवन टू वर्क। यस यस यस। ठीक है सर। सर द लास्ट क्वेश्चन फॉर Just to टुडे, add, सॉरी फॉर, यस सर, सो यू वांटेड टू ऐड so समथिंग? just to add, तो जैसे Yes, sir. रामी ने पहले भी बताया था, जल शक्ति मंत्रालय अलग से बना है अब। जी सर। शक्ति मंत्रालय का पर्पस ही यही है, जो डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट बॉडीज हैं, जो एंटिटीज हैं, उनका उनका एक अमालगमेशन है, वो उन सबको एकजुट एक प्लेटफॉर्म के नीचे, एक अम्ब्रेला के नीचे ले आया है। तो जल शक्ति मंत्रालय का हम जब भी कोई कोशिश करते हैं, हम उनके साथ मिलके काम करते हैं, ये प्रॉब्लम बहुत अच्छे लेवल तक एड्रेस हो चुकी है, मंत्रालय के थ्रू ही ड्रिवन होती है। Right, sir. So the last question that I have here, actually there's so many questions and I'm so sorry to everyone that I cannot address all the doubts. Sir, an interesting question is this, this is open to both of you, is there any side effects of Miyawaki technique which you face while planting particular plants which is used during Miyawaki? So I will take that question. So yes, I would say there are a couple of things. I won't say it's a side effect or something, but it is something what we have to take precautions. आप कुछ भी काम करते हैं, खास करके नया काम अगर करते हैं, तो आपको बहुत देखभाल करनी पड़ती है, बहुत देख रेख करनी पड़ती है कि कुछ भी अगर गलत हुआ तो पूरा प्रोजेक्ट फेल हो जाता है। भी ऐसे ही है, क्योंकि आप अब छोटे से एरिया में बहुत सारे पेड़ लगा रहे हैं, तो आप उसमें हमारे को अब 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक, अगर वहाँ फ्लडिंग हो गई तो क्या हमारे पास वहाँ से वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम हो तो नहीं सकती। हमारे पास इस तरह से चैनलिंग है कि वो वाटर लॉगिंग ना हो और वाटर बाहर निकल जाए, अदरवाइज उतने ही ज़्यादा पेड़ मर भी जाएंगे अगर वाटर लॉगिंग हो गई। तो एक ये ड्रॉबैक है। दूसरा ड्रॉबैक है, जब ये पेड़ बड़े हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि किसी वजह से भी बाद में चल के इंसिडेंट की वजह से अगर वहां पे आग लगती है, तो एक पेड़ के अंदर किसी ने सिगरेट पी, बीड़ी पी, फूंक दी और वो पेड़ सूखा हुआ है, तो उसकी वजह से उतना ही बड़ा इम्पैक्ट भी हो सकता है। तो आई विल नॉट से कि ये साइड इफेक्ट्स हैं, बट ये एक कुछ प्रिकॉशनरी स्टेप्स हैं जो हमें इंश्योर करने चाहिए कि जो एक वाटर लॉगिंग ना हो फ्लडिंग की वजह से। दूसरा, वहां पे कोई ऐसा इंसिडेंट ना हो कि जिससे फायर हजार्ड हो जाए। इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। तीसरी चीज़ है वही है, क्योंकि इतने प्लांट्स लगेंगे तो ऑब्वियसली उसमें पोरस मटेरियल रहेगा, इजीली उसमें वाटर रिटेंशन भी होगी, तो अच्छा रहेगा, सॉइल हेल्दी रहेगा। बट समहाउ अगर वहाँ पे कुछ इशू आ गया सॉइल में, तो उतने ही ज़्यादा वहाँ पे दीमक भी लग सकती है। तो इट इज़ ऑल अबाउट मेंटेनिंग व्हाट यू हैव क्रिएटेड इन अ गुड मैनर, अदरवाइज उसके रेपरकशंस भी उतने ही स्ट्रांग होंगे। एनवायरनमेंट देगा उतना ही वो हमारे लिए अनहेल्दी भी, डिजास्टर्स भी हो जाएगा। I am so glad to announce that this time we received an overwhelming response for the poetry competition themed The Voice of Nature. The participants managed to beautifully carve the muffling of Mother Nature into words, portraying nature as a character and giving out a voice to nature by calling out all misdeed it faces. The jury members were Dr. Shraddha Aditya Veer Singh from the Department of English and Dr. Suraya from the Department of Hindi. We truly appreciate
all the time and effort you have devoted, and I would like to thank you on behalf of all the society members. Now, I invite Dr. Shraddha Aditya Singh from the Department of English to announce the winner of the poetry competition. Thank you so much for this. I am very, very happy to be here today, and the program is fantastic. I heard the speakers, and I must congratulate them for this wonderful talk. I really appreciate what they have shared with the students today. And of course, I would also like to congratulate all the winners of this competition. Suraya and I had a tough time choosing the winners because all the entries were really good, and we were very impressed with the participation, that the kind of entries that we had received, the themes that were covered, the kind of content that all of you put together. It was just so very difficult for us, both of us, to judge. But here are the results, and I'm going to announce them in the reverse order. So let's begin with the English results. The third position goes to Akanksha Rai, BCom Honors student of second year from our college, Zakir Hussain College. And I think that's the poem on the screen right here. Okay. Now the second position is bagged by Shreya Singh, who's from BSc Honors Botany, third year, and she's from Gargi College. And finally, the first position, and this is a wonderful entry that we had received. It was absolutely, it took me back to the 18th century romantic poets who were nature poets. And this is something that I think deserves a publication in one of our college magazines for sure. It's a poem called Song Cry by the Weeping Willows. And the poet is Jayati Pandey, BSc Honors Botany, third year from Gargi College. So congratulations to the three of you for the wonderful effort that you've made. Congratulations, Jayati, Shreya, and Akanksha, for your efforts. Now moving on to the Hindi entries. For the Hindi poetry competition, I'm announcing on Suraya's behalf. The third prize went to Deepti from BA Honors Psychology, second year, Zakir Hussain Delhi College. And that's her poem on the screen. The second prize went to Charul from BSc Honors Mathematics, second year, Miranda House. And the first prize goes to this wonderful poem called Ek Ped Ki Jeevani, which is written by Shiva Sagar, BA Honors English, third year student of Zakir Hussain Delhi College. Congratulations, Deepti, Charul, and Shiva, for your wonderful efforts. And like I said, it's been an honor to be judging this poetry competition. The entries were very competitive and very, very competent as far as the poems were concerned. So thank you, everybody.